Hello, good evening, students. Now, today we are going to start our lecture number 10, topic light. Let me discuss what you have to learn today. Today's topic image formation in convex lens. How the image are going to form in convex lens, as well as image formation in concave lens. The basic rules are there. With the help of the rule, we have to discuss about the convex as well as concave lens, how the image are going to form. The same way, just as we discuss in mirror also, the concave and convex mirror, as the same. Now we'll discuss about the lenses. Here, this is the convex lens. This is known as the optical center. This focus point. Then this is the 2f, or in many books they are writing C also. In many books they are writing 2f or C, meaning is the same. We know very well when we are using the, suppose this is the object point here, or incident ray. Suppose this is a incident one. Okay, this is you can say this is where that side is will be the object. For that mirror lens, we are using that secondary focus. Whenever we are finding the image in case of convex as well as concave lens, just we are focusing on second focals. Okay. Here, let me consider the objects will be on that. First, we'll discuss about the rules. What are the rules are there, and then we'll discuss about that conditions of the object. The first rule, or we can discuss by the slow rule. Let me consider the object will be at the infinity. How the image are going to form. Let me consider the objects are going to infinity. It will be the far distance, far away. What is the rule? The line is passing through the parallel to the principal axis. It will be bent. It will be moved towards the focus. Which one? Focus, secondary focus. This will be f2. This is f2 and this is 2f. When the line is moving, the incident ray is parallel to the principal axis. From here, it will bend from where? Towards the focus. Understood? First rule. Second. Here the incident ray is parallel. It will bend from where? Focus. Okay. In that case, if the object will be at the infinity, your image will be at the focus, highly diminish, and it will be the inverted point image. We can say highly diminish, inverted point image, and it will image will be the real. When you are finding the image will be the inverted, the images are real. Got it? Now the next condition. Let me consider the objects at that infinite distance. It be behind the center of curvature, or this is a C, F, F, and 2F. Now we have to consider the object will be the behind the 2F. Okay, consider this 2F. Okay, or 2C, meaning is the same. Now let me discuss the object is behind the center of curvature. What is the first rule? When the incident ray is passing parallel to the principal axis, it will passing from the focus. Now here, this is suppose our object. Now passing from the focus. Now the next rule. If the incident ray is passing from the focus, it will parallel to the principal axis. Now this is the focus, and here from it will passing from the principal axis. And from center of curvature, line is undeviated. From center of curvature or from optical center, from optical center, line is undeviated. This is the from here. This will be the undeviated. This here common point will find the image. Image will be is in between the f and 2f. This is diminish. Okay. This small image diminish, inverted, and real image. Understood? How the images are going from? The first one is parallel to the principal axis. It will bend from the focus without bending with the optical center. It will go in the straight line, and from passing from the focus, it will be parallel to the principal axis. If you know the two rays, plotting the two rays, then also we are able to draw the figure. But for practice, you can plot with the help of all the three rules. The next one, understood now? How the image is going to form? What is the nature of that image? Where it will be the image? Now just as the object is coming closer and closer to the optical center, the images are going
away, and it will be size will be going to bigger and bigger. Okay, before was the image will be on the focus, that will be very point image diminished very small. Now here also the small one is in between focus and the optical center of curvature, or 2f. Okay, now the image, the object will be at the center of curvature. You have to consider the object will be at the center of curvature. This is the object, center of curvature. This is f, this is optical center, the f2 and 2f or 2f. What is the first rule? When the incident ray parallel to the principal axis passing from where? Focus. Passing from focus. The second rule, if the line is passing from the focus, it will parallel to the principal axis. It will be passing from the, it will parallel to the principal axis. Now with the help of the third rule, the line is undeviated from the optical center, correct? It will find the image exactly on the 2f, the equal size. Here the object size, this is the, and image size will be the same. The image object distance and image distance will be also the same, but they are the opposite side. We are using that u and v. Okay, the distance will be the same, as well as the magnification also. One we are considering, minus one we are considering, but the same. Okay, the distance u and v are also the same in these situations. And image is again we are finding the image is moving away and away. Before was on focus, and now the next case in between the focal and 2f, and now on the center of curvature or 2f. Now again, as we are coming the object as well closer to the optical center, the image is going away and it will be the bigger one. This is the equal size image. ये क्या है तुम्हारा इक्वल साइज की इमेज है. अभी जैसे आएगी वैसे इमेज की साइज बढ़ते जाएगी. Now the next condition. Now we'll consider the here the center f c. Okay, sometimes we are using c also, and sometimes we are using 2f also. The meaning is the same. Now the object will be at the in between the center and 2f or focal length. Now the first rule, parallel passing from focus, correct? Next one, from focus parallel to the principal axis, correct? The third one, from optical center the line is undeviated and your image will be behind the center of curvature and it will be the magnified. समझ में आ गया? इमेज किस जा रही है आपकी behind the center of curvature, otherwise 2f. Okay, we can use the 2f also, and it is a image will be magnified and real one. Understood? Same rule for the next mirror also, lens also. Now you have to consider the object will be at the focus. Now this is very interesting. now अभी इंटरेस्टिंग है. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे तुम्हारा फोकस पे है ना. वी आर अनेबल टू टेक द ऑल द थ्री रूल्स हियर. नाउ इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी वो? फोकस में जाएगी, यहाँ से जा रही है, करेक्ट. द फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट विल बी द अनडेविएटेड, है ना. तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जा रही है, पैरेलल जा रही है ना. फोकस में से जाएंगी तो लाइन कैसी आएगी आपकी? फोकस में से ऐसी जा रही है, इसके से है ना, ऐसी जा रही है ना. फोकस में से कहीं जा रही है, सीधा जाएगी कहीं है नहीं. दे विल नेवर मीट नहीं हो रहे. तो इसका मतलब इमेज क्या है आपकी? इमेजिनरी इन्फिनिटी पे बोलना है अपने को, है ना. इमेजिनरी रियल है, लेकिन अपन बोलते हैं इमेज विल बी एट द हाईली मैग्नीफाइड. और कहाँ पे आ रही हो? कहीं पे भी तो भी आपकी इन्फिनिटी पे आ रही है. हाईली मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड रियल ओनली. समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे एक्चुअली, है ना. एक्चुअली इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकल में क्या है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अपन जब बोले ऑब्जेक्ट विल बी एट द इन्फिनिटी, पॉसिबल है क्या? इन्फिनिटी को ऑब्जेक्ट रह नहीं सकते. इमेज फिर कहाँ उसकी फोकस पे आती है ना. तो ये भी वैसे ही है. कहीं तो भी आएंगे हाई, बहुत हाईली मैग्नी, कहीं जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए आसपास, वहाँ पे इमेज आपकी आ जाएगी. द नेक्स्ट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मिरर के क्या लेंस के. हाँ, ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो फोकस पे होता है तो उसकी इमेज क्या आएगी तुम्हारी? बहुत दूर पे आएगी, कहीं ना कहीं आएगी,
प्रैक्टिकल में भी आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या है, हम बोलिए कौन सा, यहाँ पे ना, हाँ नहीं सरफेस में नहीं आएगी, जब सरफेस पे आती है तो इमेज तुम्हारी क्या है, सरफेस भी आपको बहुत दूर रखना पड़ेगा, सरफेस भी क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत दूर रखना पड़ेगा जब इमेज मिलेगी, बिकॉज दीज आर द रियल इमेज कहाँ मिलती है आपको, ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज कहाँ मिलती है आपको, स्क्रीन पे, तो स्क्रीन भी आपको बहुत दूर रखना पड़ेगा जब मिलेगी, है ना। ये अपना जो लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़े अपन, सेम है लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अब इसमें कौन सा है तुम्हारा, फर्स्ट और लास्ट सेम है, अपन जो देखे ना ऑब्जेक्ट लेवल, अभी तुम्हारे को बताता लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी के भी, ये देखो अभी इसमें कौन से देखो, कौन से लॉज रिवर्सिबिलिटी के देखो, ये फर्स्ट वाला क्या था आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट द इन्फिनिटी इमेज विल बी एट द फोकस, ये फर्स्ट वाला है ना, चलो फर्स्ट कंडीशन, और तुम्हारी कौन सी कंडीशन, लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बोलते अपन देखे प्लेन्स में जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है तुम्हारे सेम पाथ सेम है, खाली उसका क्या रिफ्लेक्ट इंडेक्स अलग है ना, पाथ में कोई चेंजेस है क्या नहीं है, ये भी सेम सिचुएशन है, ये और कौन सी पांचवी, तो उसमें क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पर है, इमेज कहाँ पे आ रही है उसकी इन्फिनिटी पे आ रही है, बराबर है, यहाँ पे इमेज आ रही है आपकी, और मैंने बोला इमेज आपकी पॉइंट इमेज आ रही है, पॉइंट में छोटी सी इमेज आ रही है, ये क्या पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, कि आपने कहीं तक कोई डिस्टेंस होगा, काउंट नहीं कर सकते वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो कुछ है ना, तो अपने रेंज के बाहर है वो, अपन कंसिडर करते डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अपन एज कंसिडर करते कि वो क्या है इन्फिनिटी समझते कंसिडर करते, लेकिन कुछ तो डिस्टेंस है पता है अपने को, लेकिन इट विल कंसिडर दैट वन, है ना ये। अब इसमें फर्स्ट इमेज में और पांचवें में क्या है तुम्हारा लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम में आ रहा है, देखो 1 and 5th, है ना, ये क्या है तुम्हारा 1 and 5th, इसमें क्या लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, जैसे कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज कहाँ पे है तुम्हारी फोकस पे, वहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, वहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे, है ना। सेम अभी सेकंड और फोर्थ वाला भी देखिए, अभी यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ फिगर, तो सेकंड फिगर में क्या देखो, अभी इसमें क्या पहले ऑब्जेक्ट क्या था, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इमेज कहाँ पे आई थी आपकी, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, बराबर है, तो ऑब्जेक्ट आपका मैग्नीफाइड था, इमेज, है ना, तो यहाँ पे भी क्या है सेम वैसे ही है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था आपका, इमेज बड़ी आ गई, तो ये लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे भी आ गए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है तो आपकी इमेज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज यहाँ पे आएगी, लेकिन इतना ही है, अपन ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड नहीं रख सकते, इमेज इन्वर्टेड आएगी, ऑब्जेक्ट अपन उल्टा नीचे रख सकते क्या नहीं, बट इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो रिवर्सिबिलिटी लॉज है वो पूरे लॉज इसमें फॉलो होते हैं, समझ में आ रहा है। अभी थर्ड तो सेम था, कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो इसके लिए तो यही है, यही इसके लिए क्या है, यही फिगर रिवर्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो यहाँ तो ऑब्जेक्ट रखो, इमेज विल बी द सेम लॉज, सेंटर पे है तो सेंटर पे आएगा इमेज, 2f है तो 2f पे आएगा, सेम साइज सेम डिस्टेंस, है ना। तो ये इमेज तुम्हारी कौन सी थी, तुम्हारे 2 and 3 था, ये 3 and 3, ये अपनी इमेज नंबर कौन सी थी अपनी, ये 2 थी सपोज, है ना, और वो थी 1, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिख दिया, यहाँ पे 1, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ से आपने देख रहे कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपके आ रहे। अभी ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है कंडीशन, इमेज ये कंडीशन में निकालने के लिए पूछते। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सोच के आप लोगों को इमेज निकालना है, जैसे कि मिरर में था लास्ट कंडीशन कौन सी, हाँ जो लाइट के तुम्हारे इंटरसेक्ट लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहे थे, तो इमेज कहाँ रही थी तुम्हारी बिहाइंड द मिरर, द सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, वर्चुअल इमेज। अब तक इमेज कौन सी थी अपने पांचों के पांचों रियल थे, इन्वर्टेड थे, है ना, पर ये क्या आएगी तुम्हारी वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी, वर्चुअल इरेक्ट आएगी, समझना तो इमेज मोस्टली तुम्हारे को याद में रखना कि वो क्या है वर्चुअल है। देखिए तो इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना, by using the first rule passing from the focus, बराबर, सेकंड रूल ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रहा है, बराबर, थर्ड रूल ये यहाँ पे यहाँ जा रहा है, इसका फोकस ये है कि मिलेगा क्या, इधर तो नहीं मिलेगी, मिलेगी कहाँ पर तुम्हारे इमेजिनरी डिस्टेंस, है ना, तो इसको कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, तो फिर यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, बराबर। कैसी है इसकी इमेज, वर्चुअल आई, इरेक्ट आई और मैग्नीफाइड आई, है ना।
द इमेज विल बी द वर्चुअल, रियल एंड मैग्नीफाइड, है ना, वर्चुअल इरेक्ट भी है ना, सॉरी रियल नहीं, सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, गॉट इट। हाँ, ये 6 कंडीशन है। तो अभी नेक्स्ट इसमें ये आपने ये फिलअप करना है सेम। देखो तो क्या था, बोलिए फिर से बताओ क्या, अच्छा देखिए वही फिगर निकाल के बताओ कि दूसरा फिर से उसमें बताओ, देखिए इसमें बताओ। देखिए फर्स्ट में क्या था, देखो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या था, इन बिटवीन फोकस एंड, कहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस में है, कहाँ पे, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, बराबर है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है ना। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, ऐसे जा रही है, बराबर है ना, तो लाइन ऐसे जा रही है। और सेकंड लॉ क्या अपना, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लाइन इज अनडिविएटेड, तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन ऐसे जा रही है, तो ये क्या दूसरे एक दूसरे को स्प्रेड हो रहे हो, यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे क्या हो, कहीं पे भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड रूल अपन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, फोकस में जा रही है तो यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है मिरर को, फिर जहाँ पैरेलल जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है, बराबर है। तो इमेज की फॉर्मेशन कैसा हो रहा है तुम्हारा, अब इसकी वर्चुअल इमेज हो रहा है, तो फिर इसको क्या करें अपन, एक्सटेंड, याद से इधर तो टच नहीं हो रहे हो, तो टच कहाँ हो गए हो, ये साइड में, है ना। तो इमेज कहाँ, यहाँ पे ये अपन यहाँ पे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे टच हो रहे हैं दोनों इमेज, इसलिए यहाँ पे इसकी इमेज ऐसी फॉर्म हुई। ये क्या है, तुम्हारी इमेज कैसी हुई, तुम्हारी मैग्नीफाइड भी, इरेक्ट भी एंड वर्चुअल भी, समझे। हाँ, ये वर्चुअल है, हाँ मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है। आप तक इसमें क्या थे अपने, देखिए इसमें इमेज कैसी थी अपनी, अब इसमें आप जो बोल रहे थे, इस इधर भी नहीं टच करेंगे, इधर भी टच नहीं करेंगे ये, बराबर। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे टच करेंगे वहां पे इमेज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे इमेज कैसी है आपकी, आपकी इमेज अपन कंसिडर करते कि हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और रियल है ना। यहाँ पे इमेज कैसी है अपनी, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड। यहाँ पे इमेज इक्वल साइज है ना, यहाँ पे क्या है, इक्वल साइज, रियल है और इन्वर्टेड। यहाँ पे इमेज डिमिनिश है ना, डिमिनिश बट रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश बोलते हैं, पॉइंट इमेज बोलते हैं, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश एंड रियल, है ना, ये भी रियल है। लास्ट कंडीशन क्या है आपका, इमेज कैसी है आपकी, यहाँ पे आई इमेज वर्चुअल है ना। तो और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी लेबल फिल करना है, जैसा कि जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट नजदीक नजदीक आ रहा है तो इमेज कैसी जा रही है आपकी, दूर दूर जाती जा रही है, बराबर। सबसे पहले क्या है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी था, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आई, एट द फोकस पे आई, है ना, कौन से फोकस पे आई, F2 पे, मोस्टली अपनी इमेज कहाँ पे आती, F2, अब उधर ही जाते हैं अपन, इधर नहीं आ रहे, इधर कौन सी, बिहाइंड द फोकस कौन सी आ रही, लास्ट कंडीशन में, है ना, बिहाइंड 2F भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसी है, इसका नेचर कैसा है, रियल है ना, रियल है और इन्वर्टेड है ना। साइज कैसी, इसकी डिमिनिश, हाईली डिमिनिश भी बोल सकते हैं, डिमिनिश बोलो, पॉइंट इमेज, पॉइंट साइज, बिहाइंड सी द सेम। अभी यहाँ पे क्या है, इन बिटवीन F2 एंड 2F, बराबर है। इसका भी नेचर कैसा है तुम्हारा, सेम है ना। यहाँ पे भी इमेज क्या है तुम्हारी, डिमिनिश, यहाँ पे इक्वल साइज, कहाँ पे है तुम्हारी, 2F2 पे, सेंटर पे, है ना। तो यहाँ पे इसका भी, इसका नेचर कैसा है तुम्हारा, रियल है और इन्वर्टेड है, इक्वल साइज है ना, सेम साइज बोलो, इक्वल साइज जैसे भी बोलो। अभी यहाँ पे बिटवीन C एंड F, यहाँ पे कैसा आ रहा है इमेज, अभी आपको लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी आस्क कर सकते हैं आप, C एंड F किस पे अपना, देखो C और F का मतलब क्या है, 2F है ये और ये F है, 2F और F बोलो तो ये है, बराबर है। तो ये, तो यहाँ पे कैसी आएगी तुम्हारी
सी के बियॉन्ड सी थी, तो यहाँ पे बियॉन्ड सी आएगी, है ना। तो लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे से ये और इसका ये इसका और इसका ये लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे इसका आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, इमेज क्या है अभी तुम्हारी बियॉन्ड सी, बराबर है ना। तो लिखता मैं बियॉन्ड सी, द नेचर इज सेम, और यहाँ पे मैग्नीफाइड, इमेज क्या है आपकी मैग्नीफाइड। एट द फोकस कहाँ पे आई, इन्फिनिटी पे, है ना। ये और ये सेम है तुम्हारा विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारी इन्फिनिटी पे आई, नेचर क्या है इसका सेम, हाईली मैग्नीफाइड, है ना। यहाँ पे आई बिटवीन एफ एंड पी, पी एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर को गड़बड़ में लिखा होगा उन्होंने, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। मिरर में अपन जनरली पोल लिखते हैं, लेंस में लिखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे क्या है बिटवीन फोकल लेंथ एंड पी। तो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है आपकी, कहाँ पे, कौन सी सी पे है तुम्हारी, हाँ बिहाइंड लेंस, है ना। कौन सी साइड में तुम्हारी, यहाँ पे क्या थी 2f की तरफ थी, है ना, बिहाइंड 2f, है ना। तो बिहाइंड क्या है तुम्हारी, सॉरी बिहाइंड f1 की वो साइड में आ गई। हो सकता है कि कभी कभी नीचे तुम्हारी f1 और c के बीच में भी हो मैग्नीफाइड, पर f1 की इधर है बिहाइंड f1, है ना। f1 की इधर किधर भी होने दो, c पे होने दो या और 2c पे होने दो, कहीं पे होने दो, लेकिन f1 के इधर। अब यहाँ पे सब f2 यहाँ पे f1 है बिहाइंड f1, बराबर है, वो साइड के पर यहाँ पे इमेज कैसे है तुम्हारी, यहाँ पे वर्चुअल आ रही एंड इरेक्ट आ रही, है ना। वर्चुअल और सीधी आ रही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारी इमेज मैग्नीफाइड, गॉट इट, समझ में आ गया कंडीशन से। सेम रूल अप्लीकेबल फॉर दैट द लेंस ऑफ कॉन। अब इसमें देखो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ इसकी क्या है ना। तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ क्या है, वर्चुअल है, इसमें इमेज भी वैसे आएंगे। और हमेशा याद रखो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, एनी कंडीशंस फॉर मिरर आल्सो, फॉर लेंस आल्सो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स व्हाटएवर मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट द इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट द फोकस ओनली, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सपोज ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी से, फर्स्ट कंडीशन तो क्या करना है आपको, इमेज कहाँ पे आएगी उसकी फोकस पे। अब इसका फोकस कहाँ पे आएगा, इसका फोकस ये साइड में है ना। तो इसका फोकस ऐसा ऑब्जेक्ट गया, है ना, एक्चुअली ये क्या है डाइवर्जिंग मिरर है, ऐसा जा रहा है ना। इसका फोकस क्या है तुम्हारा, इसका फोकस यहाँ पर आएगा, इमेज कहाँ पे आएगी आपकी यहाँ पर। और इमेज कैसी आएगी आपकी, फाइंड इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यहाँ पे देखो इमेज हमेशा छोटी है ना। मिरर में देखे जाए अपन ये काइंड के, इसमें लेंस में कैसी थी इमेज, विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश, है ना। तो यहाँ पे क्या इमेज वर्चुअल एंड डिमिनिश, है ना, इरेक्ट। द नेक्स्ट कंडीशन देखो, तो यहाँ पे क्या है, वेयर विल सपोज द ऑब्जेक्ट्स इन द पर्टिकुलर रेंज, यहाँ पे ले लेंगे अपन ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे ले लें, यहाँ पे रेंज पे ले लें। देन बाय द फर्स्ट रूल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम वेयर फोकस, ये सपोज का फोकस है ना, इधर आएगी वो, है ना। एक्चुअली जा रही है ऐसी, ये लाइन तुम्हारी डाइवर्ट हो रही, पर अपन क्या करते रूल के हिसाब से। और सेकंड रूल क्या है तुम्हारा, इज अनडिविडेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, बराबर, अनडिविडेड फ्रॉम, इमेज कहाँ पे मिल रही है आपको, बिटवीन ऑप्टिकल, ऑलवेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना। इट विल बी ऑलवेज, इमेज विल बी डिमिनिश एंड इरेक्ट, है ना। यहाँ पे आप थर्ड रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड रूल कहाँ है, इसका फोकस ये साइड में आएगा, है ना। इसलिए थर्ड रूल अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ दो ही रूल इसमें अप्लाई करना है, इमेज विल बी इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इरेक्ट। देखिए तो टेबल में इतना ही गैज एट द इन्फिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है आपकी, बोलिए यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज आई फोकस पे आई, है ना। और कौन से फोकस पे आई, हमेशा इसमें F2 पे आएगी, कौन से फोकस पे आई F2 पे, है ना, क्योंकि इसका फोकस F2 कौन सा है, F2 कौन सा है, हाँ डाइवर्जिंग पॉइंट, है ना।
तो इसमें क्या है F2 इधर डाइवर्जिंग कॉन्वर्जिंग, और अपन मोस्टली जो इमेज आते हैं कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जब F1 क्या है तुम्हारा, जहाँ से पॉइंट निकल रहे वहाँ से लाइन्स तुम्हारे पैरेलल निकल रहे हैं, वो क्या है तुम्हारा F1। F2 यानी क्या है कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसका, वर्चुअल है ना। साइज कैसी है इसकी, हमेशा डिमिनिश, साइज हमेशा क्या है इसकी डिमिनिश आएगी। ये एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो तुम्हारी इमेज कहाँ पे आएगी तुम्हारे एग्जैक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका भी नेचर कैसा है तुम्हारा वर्चुअल एंड दिस विल आल्सो डिमिनिश, है ना। हाँ इसका इधर ऐसा, हाँ इसका बताता हूँ मैं, इसका फोकस आपके ध्यान में आया कि इसका फोकस कैसा रहता है, बताता हूँ मैं आपको एक बार। तो यहाँ पे देखो समरी में अपन देखेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्शन कॉन्केव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दिखा था पहले फोकस क्या होता है ना। अपन इमेज देख ले, इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्शन कॉन्केव लेंस के जैसे कि तुम्हारे 6 कंडीशन। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है तुम्हारे, कॉन्वेक्स लेंस देखो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या है तुम्हारा, इमेज ऑलवेज विल बी द डिमिनिश, इरेक्ट, वर्चुअल, दो ही कंडीशन है इसमें, है ना। और इसमें क्या है तुम्हारे 6 कंडीशन है। हाँ इसमें क्या है तुम्हारे मैक्सिमम 2 कंडीशन है। तो इसमें इमेज तुम्हारी रियल भी मिलेगी, वर्चुअल भी मिलेगी, डिमिनिश भी मिलेगी, मैग्नीफाइड भी मिलेगी, करेक्ट है। हाँ एंड सेम साइज भी मिलेगी, सेम साइज मिलेगी, डिमिनिश मैग्नीफाइड सभी मिलेगी इसमें। अभी आपको फोकस F2 कौन सा है, F1 कौन सा बताता मैं आपको, है ना। तो ये क्या है तुम्हारी, ये लेंस है, ये एक लेंस है ना। तो जब तुम्हारे लाइट समझो तुम्हारे जहाँ से पैरेलल निकलते हैं, अभी यहाँ से सपोज इसको मैं लाइन जा रहे हैं, तो इरेज, तो इरेज लाइन जाने वाले रेज कैसे जाएंगे तुम्हारे, ये एक दूसरे को पैरेलल हो गए, है ना। तो इसे क्या कहोगे आप F1, इसे क्या कहोगे F1। अब इसके लाइन पैरेलल कब जाओगे आप, जाएंगे कब, इधर का होता है फोकस, तो कैसे जा रहे तुम्हारे डाइवर्ट हो रहे हैं। इसको क्या करेगा अपन, यहाँ से लाइट आ रहे हैं तो लाइट जा रही तुम्हारे पैरेलल, बराबर। तो ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हो गया F1 कॉन्वर्जिंग। अब यहाँ पे इसमें क्या है F1 क्या है इसमें, देखो अभी ये तुम्हारे पैरेलल आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो तुम्हारा ये कॉन्वर्जिंग पॉइंट, जो क्या है तुम्हारा, इसको बोलेंगे F2। और ये इसमें ये लाइन आ रहे हैं, तो यहाँ पे डाइवर्जिंग पॉइंट हो आपका ये, तो ये क्या है तुम्हारा इसमें F2, समझे। इसमें F1 क्या हो रहा है, इसमें F2 क्या हो रहा है, इसमें F1 ये साइड का है, इसमें F1 ये साइड का है, क्योंकि ये लाइन तुम्हारे पैरेलल जा रहे हैं, आगे के पूरे जो लाइन क्या जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे पैरेलल जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन आए थे आपके, तो क्या हुआ तुम्हारे ये पॉइंट पे से डाइवर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, वो तो यहाँ पे तुम्हारा फोकस आया। कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट, दिस इज द कॉन्वर्जिंग पॉइंट एंड दिस इज द डाइवर्जिंग पॉइंट। तो कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, F2, समझे। कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट को बोलना है F2, और जहाँ से रेज पैरेलल जा रहे हैं वहाँ पे बोलना है F1। अपने को मोस्टली अपन जब न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, अपने को F1 का यूज बहुत कम है, हमेशा F2 को अपन कंसिडर करो, F ही बोलो, कन्फ्यूजन मत करो, खाली दिमाग में रखो F2। अपन मोस्टली क्या करते हैं, फोकस इसको ही रीड करते हैं। अभी मैं जनरली बोला फोकल लेंथ बोलते F2 ही होता है, F1 के बारे में मेंशन मोस्टली नहीं करते। होमवर्क लिए क्या है आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द मिरर एंड द लेंस मल्टीपल टाइम्स ऑफ दिस रूल। सेम रूल्स है, 3 रूल्स है ना। मिरर में 4 रूल्स एप्लीकेबल कर सकते हैं, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो वहाँ पे अपन 2 ही रूल अपन वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड रिवाइज रिफ्रैक्शंस एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल टिल द रिफ्रैक्शंस। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज करना है, तो न्यूमेरिकल्स रिवाइज करने के फॉर्मूले कौन से आपको याद है, शायद फॉर्मूले है ना। कौन सा रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन का ही करना है। रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले अपन कौन सा देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तुम्हारा, n इक्वल्स टू साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय R, दैट इज V1 डिवाइडेड बाय V2, लैम्बडा 1 डिवाइडिंग बाय लैम्बडा 2, और पता है आपको V इक्वल्स टू n लैम्बडा, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 इक्वल्स टू कितना है 1, है ना। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है हमेशा 1, है ना। बोल तो लाइन तुम्हारी क्या है 1 से 2 में गई और 2 से 1 में गई,
उसका हमेशा उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1। तो अपन कैसे लिखते हैं हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, कोई बुक में ऐसा भी लिखते हैं, और कोई बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्टिव 2, है ना, ऐसा लिखते हैं। अभी लिखने के तरीके अलग है। अभी सबसे जो पहला है उसके बाद अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्टिव 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्टिव 2, लिखने के तरीके अलग है ना। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर अब वैक्यूम जो है जो फर्स्ट मीडियम, तो उसके अपन ए नहीं लिखते, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है, वैक्यूम है आपका, फर्स्ट मीडियम क्या है, वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ वैक्यूम डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ मीडियम, बराबर है। यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम, है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्पीड ऑफ, यहाँ पे सेकंड मीडियम डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना, तो यहाँ पे सेकंड है, विथ रेस्पेक्ट टू जो आएगा वो ऊपर होगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू जो आएगा वो ऊपर होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम था, वैक्यूम कहाँ है, ऊपर है, रिफ्रैक्टिव मीडियम क्या है यहाँ पे नीचे है, जो मीडियम है वो नीचे, और जो वैक्यूम जो भी जो फर्स्ट जहाँ पे आ रहा है सेकंड वाला, और यहाँ पे जो सेकंड वाला ले रहे हैं अपन 2 ले रहे हैं, या तो इधर 2 ले रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू जो है वो ऊपर आएगा। वेवलेंथ के लिए भी सेम। और कौन सा फॉर्मूला देखिए अपन, इसमें अभी अपन लेंस फॉर्मूला देखना बाकी है, लेंस फॉर्मूला भी शायद मेरे ख्याल से अगले लेसन में बता देगा, शायद अगले टॉपिक में कौन सा, हाँ पावर का फोकल लेंथ, है ना, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन पावर भी शायद मेरे ख्याल से नहीं बताया शायद मैंने, क्योंकि इसमें भी क्या है, पावर के लिए भी क्या है तुम्हारा साइन कन्वेंशन जरूरी है, साइन कन्वेंशन के बाद में एक्चुअली तुम्हारा पावर का फॉर्मूला आएगा, और वेल आज तुम्हारा लेंस फॉर्मूला, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में शायद, है ना। तो आज का लेक्चर में बहुत कम दिया है। इफ एनीवन हैविंग द टुडेस डाउट्स इन टुडेस टॉपिक, प्लीज आस्क एंड क्लियर योर डाउट्स। आज का टॉपिक बहुत सिंपल था, आज का टॉपिक वेरी क्लियर, सिंपली 3 रूल्स आर देयर। फर्स्ट वन, if the incident ray is parallel to the principal axis passing from where, focus, if the incident ray is passing from the focus parallel to the, and from optical center line will be the undivided. 3 rules for the convex as well as concave mirror, okay, lens, okay. Then we'll wind up the today's topic. Thank you for everyone.